Okay, good morning everybody. Good morning all my dear student of class 12 science. So please join fast. As you know, I think after a long break we are again in live streaming class. Okay, our last live streaming class I think I took the first week of November. So it is almost 1 month. Okay, 1 month back actually I took your last live streaming class, and then your online assessment exam as well as your Diwali vacation was there. Okay. So I hope that all are fine, all are healthy. So today we are going to start our today's lecture, and that is based on this surface chemistry. We were dealing with the surface chemistry topic, and today in the surface chemistry, if you remember that we are in the surface chemistry chapter, the first topic already people had finished, and that was the adsorption. Okay, the first topic already people had completed, and that was the adsorption. And today we have to discuss about the catalyst and the catalysis. Okay, so once again, good morning to all. Good morning to all, my dear. So we have to discuss the next part of the chapter, that is the catalyst and catalysis. Okay, so we have to discuss about the catalyst and the catalysis. And one more thing here, in this catalyst and the catalysis, the 2-3 topic already I have discussed with you, and that was what is the catalyst, what are the type of the catalyst, and then the homogeneous and the heterogeneous catalysis are there. So this topic already we people had discussed. So should we move from the next topic, or you want a quick revision of this particular topic, the portion what we had completed now? So you please text me, do you want from this next the theory of the catalysis, or you want a one quick revision of the catalyst and the catalysis part? Okay, so Aman and Rishi, okay, and Arnish also. Arnish, after a long break, dear, I am interacting with you. It's a very good thing. I'm very happy. And then Prajwal and Sai also saying that one quick revision is required. Okay. So first of all, my dear, please remember that what is the catalyst, because we are dealing with the surface chemistry chapter. Okay, I already discussed with you the surface chemistry is the branch of the chemistry where basically we have to discuss those processes which are basically dependent upon the surface, which shows the surface phenomena. Okay, so the adsorption already we discussed. Then catalyst, because catalyst also work under the adsorption theory. Today I will also discuss the theory of the catalysis, and then I will discuss with you that the catalyst also work on the principle of the adsorption theory only. Okay, leave that. So what is, one more thing, is the board visible to everybody? ये पूछना मैं भूल गया था. So am I audible and the white board is visible to everybody? फिर अपन स्टार्ट करते हैं. ये आपको okay, good, thank you. Now, so what we can say that अब कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम टिल क्लास 10 तक की बात करें तो कैटलिस्ट क्या होता था? कैटलिस्ट आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस which alters the rate of reaction but does not take part in the reaction. Absolutely right, बिल्कुल सही जवाब है. लेकिन आप सरफेस केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो कैटलिस्ट को नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सरफेस फिनोमेना में कैसे बोल रहे हैं वो भी मायने रखता है. ठीक है ना? तो आप क्या कहते हो कि कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. कैटलिस्ट हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑन दैट सरफेसेस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट इज देयर. ठीक है ना? तो मतलब आपका डेफिनेशन जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है. That is also okay, but as per the modern concept, you can explain the catalyst phenomena with this surface phenomena, with the surface concept. Okay, so what is the catalyst? You can say catalysts are those chemical substances which provide the surface area for the reactant molecules. These are called as the catalyst. Okay, बाकी आप जो पढ़ते थे कि does not take part in the reaction, तो आपको पता है surface अगर है, ठीक है, तो सरफेस पे अगर आप आओगे तो सरफेस पे तो कोई रिएक्शन होगा. जब रिएक्शन आपका पूरा हो जाएगा तो अपने आप जानते हो कि वो फिर से यूज पार्टिसिपेट नहीं करेगा.
ठीक. And now what is the catalysis? You can say catalysis is called the phenomena. Catalysis phenomena है, catalyst हमारे substance. ठीक है ना? इधर है very important सी बात. And then we discuss about the type of the catalyst. अब अगर मैंने catalyst और catalysis अगर हम दोनों को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप कहते हो साहब अगर हम कैटलिस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो नाउ यू कैन से द फोर टाइप ऑफ द कैटलिस्ट आर देयर. ठीक. एंड इफ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई अबाउट द कैटालिसिस, so two type of the catalysis are there. ठीक है. In the type classification of the catalyst, you can say it is the positive catalyst, then negative catalyst, auto catalyst, and induced catalyst. These four type of the catalyst are there. And if you will classify about the catalysis, so again the two types are here. The first one is called as homogeneous catalysis and the second one is called as heterogeneous catalysis. Okay, so this is the classification of the catalyst and the catalysis. यहाँ पर बड़ी मजेदार सी बात है, एक नोट पॉइंट याद रखो, है ना, स्टार समझ लो. टू मोर टाइप ऑफ द कैटलिस्ट, एक और भी इसमें क्लासिफिकेशन आता है. एंड व्हाट इज दैट? दीज आर कॉल्ड एज द catalytic promoters and the next one is catalytic poisoners. Catalytic promoters and the catalytic poisoners. So this is all about the classification of the catalyst and the catalysis. Okay, तो ये साहब हमारे कैटलिस्ट के टाइप हैं और ये हमारे कैटालिसिस के टाइप हैं. ये दो नई हेडिंग है जो याद रखना. बता देता हूं क्या है वन बाय वन. If you will discuss about the positive मतलब plus का मतलब बढ़ना. ठीक है. तो what we can say the positive catalyst are those catalysis which increases the rate of reaction. Increases का मतलब वो वास्तव में सरफेस प्रोवाइड करेंगे. आप किसी के घर गए और अगर आपको बैठने के लिए सरफेस ही नहीं प्रोवाइड कर रहा तो मतलब वो कैसा इंसान है? आप बोलोगे यार बड़ा बेकार आदमी था यार, मैं इतनी दूर से चल के आया और मुझे एक बार ये भी नहीं बोला कि मेरे घर पे आओ, मैं यहाँ बैठूं. मतलब वो कैसा कैटलिस्ट है? नेगेटिव. प्रोवाइड कर देता है तो पॉजिटिव. ठीक. सो दिस इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ऑटो कैटलिस्ट बड़ी मजेदार सी चीज है. ऑटो कैटलिस्ट एनी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन टेक्स्ट मी बिकॉज़ ये टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हो. सो एनीबॉडी कैन टेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटो कैटलिस्ट. आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, बट इफ एनीबॉडी नोस कैन टेक्स्ट इट. व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटो कैटलिस्ट? Yes, very good, Savash. So Sakshi and Aman gave the right answer. The auto catalysts are those reactant. One of the reactant which will act as a catalyst over there. ठीक है ना? One of the reactant. अभी आपका क्लास 12 में जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ईश्वर करे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चालू हो, तो जब आप टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे हम K-मोनोफोर डालते हैं. आपको पता है K-मोनोफोर एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन जो K-मोनोफोर है वो कैसा है? एक ऑटो कैटलिस्ट का भी काम करता है. रिएक्टेंट है बट रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा देता है. ठीक है ना? हालांकि टाइट्रेशन में तो सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करता है. ठीक है ना? तो व्हाट यू कैन से ऑटो कैटलिस्ट आर दोस इन व्हिच वन ऑफ द रिएक्टेंट. मैंने बोला दो स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, दो स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं. एक स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा तेज है, थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है. अभी वो है तो स्टूडेंट, वो टीचर तो नहीं, स्टूडेंट है, मतलब रिएक्टेंट है. लेकिन उन दो बच्चों में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ा ले रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन भी आगे बढ़ा रहा है. सो वन ऑफ द रिएक्टेंट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज द ऑटो कैटलिस्ट. इंड्यूस्ड का मतलब जब एक पूरा का पूरा रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन को इंड्यूस्ड कर दे, इंस्पायर कर दे, आगे बढ़ा दे. सो दैट इज कॉल्ड. मैंने एग्जांपल दिया था कि सोडियम सल्फाइड है, उसको आप हवा में रखते हो ओपन एयर में तो सोडियम सल्फेट बन जाता है. सोडियम आर्सेनाइड को रखते हो हवा में तो आर्सेनेट नहीं बनता. लेकिन दोनों को मिक्स करके हवा में रख देते हो तो सल्फेट भी बन गया, आर्सेनेट भी बन गया. तो जो सोडियम सल्फाइड वाली रिएक्शन थी वो इसके लिए इंड्यूस कैटलिस्ट का काम कर गई. ठीक है ना? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर क्लास 12 बोर्ड के लिए, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट मैंने यहां पे कोई रिएक्शन लिखा है, हाइड्रोजन
यहां पर सपोज मैंने आयरन कैटलिस्ट ले लिया और यहां मैंने अमोनिया गैस बनाया, ठीक, ये कोई मैंने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया। तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट आर द गैसेस, प्रोडक्ट reactant are the gaseous phase and the catalyst is in the solid phase. इस कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, we have to just check the phase of the reactant and the catalyst. So if the phase of the catalyst and the reactant are the same, they are called as the homogeneous catalysis, and if the phase of the reactant and catalyst are not same, then it is called as the heterogeneous catalysis. तो ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, this time this formation of the ammonia is the example of, anybody can text, this reaction is the example of homogeneous catalysis or the heterogeneous catalysis. Yes, very good. So it is called as a heterogeneous catalysis are there क्योंकि reactant और catalyst दोनों अलग अलग फेज में, ठीक। So very good. So Aman, Rishi, Priyanshu, Agnish and Vedant, they gave the right answer. ये heterogeneous का एग्जांपल हो गया, ठीक। अब वापस लौट के आते हैं कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजनर। ये बड़ी कमाल का रिएक्शन है, बड़ा कमाल का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज आई एम सेइंग दैट, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो कि व्हाट आर द कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड व्हाट आर द कैटालिटिक पॉइजनर्स। कैटलिस्ट आपके वो रिएक्टेंट हैं, कैटलिस्ट आपके वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं, लेकिन आपके प्रमोटर और पॉइजनर वो केमिकल्स हैं जो कैटलिस्ट पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। मींस सपोज मैंने आपसे बोला N2 + 3H2, यहां Fe है और मैंने यहां मॉलिब्डेनम ले लिया, मॉलिब्डेनम ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक, और यहां से ये NH3 बन गया। अब क्या हो गया साहब, देखो N2 and 3H2 these are called as the reactants, ये reactants। Fe will act as a catalyst over there, ये catalyst है। अमोनिया यहाँ पे प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, यहाँ पर MO क्या है पता है, this MO molybdenum is the catalytic promoter, ये कैटालिटिक प्रमोटर है। प्रमोटर का मतलब व्हाट द रोल ऑफ द Fe, यहाँ पे Fe का रोल क्या है, द रोल ऑफ द आयरन टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्टेंट। बट व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉलिब्डेनम, द रोल ऑफ द मॉलिब्डेनम इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ आयरन। आयरन को भी तो एक्टिव करो, अगर आयरन को एक्टिव करोगे तो यहां पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने प्लैटिनम गॉज में रख के उसको ऑक्सीडेशन करा दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, बट मैंने वहां पे अगर कोई दूसरा ऐसा केमिकल ले लिया जो उस रिएक्शन को नहीं होने दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द कैटालिटिक पॉइजनर्स आर देयर। सो प्रमोटर एंड पॉइजनर आर दोज केमिकल्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट पे रेट इफेक्ट डालते हैं। So these are called as the catalytic poisoner and the promoter. So is it okay to everybody? So this was the quick revision what the topic we had discussed in our last live streaming class. So is it okay to everybody? Should we move forward? आगे बढ़े साहब? Please text me. Okay, good. शाबाश, बहुत बढ़िया। So now we are going to discuss the next topic. अब आगे बढ़ते हैं जो अपने को नया पढ़ना है, and that is the theories of the catalysis. Means how the catalyst work. Catalyst जो वर्क करते हैं वो साइंस की लैंग्वेज में किस थ्योरी पर बेस्ड है, what are the chemical theories, है ना, behind the catalyst, under which the this catalyst work. So now we are going to discuss the theories of the catalysis, and tomorrow your catalyst part will be the finish. तो अपन कल अगर खत्म हो जाएगा, so then we have to go through with the adsorption, this colloids, because in the surface chemistry chapter we have to discuss the three topics: adsorption, catalyst and the catalysis, and the colloids. So tomorrow your catalyst part, I hope so it will be finished. So either tomorrow or the day after tomorrow your colloid part will be start. So I will fully try to complete this particular chapter in this week only. जिससे कि अपन next week से अपन क्या करेंगे,
इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अपना केवल इनऑर्गेनिक का ही पार्ट बचा हुआ है ना? P block, D block, DF block, and the coordination. So 3 chapters are left. So after that we will go through the inorganic. Now, okay, so we are going to discuss the next topic, and that is theories of catalysis. है ना? How the catalyst work? Yeah, Sahil, you are absolutely right. Biomolecule is also left. Okay, तो बायोमॉलिक्यूल भी बचा हुआ, वो भी अपन कर लेंगे. बट अगर मेन काम देखें तो ये ज्यादा मेन चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, तो पढ़ लेंगे आराम से, बड़े आसानी से हो जाएगा. फिर वो आखिरी का एक चैप्टर बचेगा बायो पर बेस्ड है, तो इतना ज्यादा पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है उधर. ठीक ना? सो थ्योरीज ऑफ द कैटलिसिस नाउ वी हैव टू डिस्कस. सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट द कैटलिस्ट वर्क on basically 3 theories are there. Total 3 theories are there under which the catalyst work. जहाँ पर हम catalyst की mechanism को समझा सकते हैं. And what are these? The first one is, और यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरी है बेटा, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा मिलेगा. अगर आप एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ोगे तो वहां पर केवल एक ही थ्योरी का नाम है, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी. लेकिन अगर आप रिफ्रेशर बुक को उठाओगे, थोड़ा और सर्च करके पढ़ोगे, तो टोटल आज तक 3 थ्योरी बनी जिससे कैटलिस्ट की वर्किंग को समझाया गया. एंड व्हाट आर दीस? द फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी. Intermediate compound theory. Second one is called as the adsorption theory. And the third one is modern adsorption theory. So these are the total 3 theories are there जिसपे हमारे कैटलिस्ट काम करते हैं. टोटल ये 3 थ्योरी बताई गई जिससे आप समझ सकते हो कि हाउ द कैटलिस्ट वर्क. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मॉडर्न है तो अपने को एट लास्ट तो यही पढ़ना पड़ेगा जो मॉडर्न है, आधुनिक है. ठीक, बट ये भी उसके पहले के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस. तो पूरी भागवत सुना करके आपके एनसीईआरटी में क्या किया कि सीधे ये लिख दिया, तो उसमें ये भी इनबिल्ड हो गया. ठीक, तो मैं बताता हूं 1 बाय 1 करके क्या है इसमें. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ये क्या होता है देखो. इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इस थ्योरी ने ये बोला कि सपोज मैंने आपसे बोला कि अगर कोई एक रिएक्टेंट A है, कोई कैटलिस्ट X है और प्रोडक्ट B है. ठीक, इफ यू आर डीलिंग विद द फर्स्ट वन, अगर हम पहले की बात करते हैं, इस थ्योरी की बात, इस थ्योरी की बात. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इट इज द रिएक्टेंट A, X is the catalyst and B is the product. मैं लिख भी देता हूं. ये साहब हमारा एक रिएक्टेंट हुआ, ये हमारे कैटलिस्ट महोदय है, और ये साहब हमारे प्रोडक्ट. So what is the intermediate compound theory exactly? आप एक बड़ी पुरानी डिफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हो कैटलिस्ट की. काफी जब से आप 9th 10th सबसे आपने कैटलिस्ट वर्ड को पढ़ना स्टार्ट किया, तब से आप पढ़ रहे हो. Catalysts are those chemical substances which does not take part in a reaction but alters the rate of reaction. रियलिटी में ऐसा नहीं है कि अगर कोई केमिकल है तो रिएक्शन तो करेगा भाई, बगैर रिएक्शन के कैसे काम कर देगा. अगर कोई किसी के रेट को बढ़ाता है तो उसने कुछ तो रिएक्शन भी किया होगा ना, तो कैसे किया होगा. देखो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, स्टेप 1, first of all, your reactant molecule react with the catalyst and form an intermediate. चलिए ये बात AX. ठीक है ना? ये मैं बड़ा आसान आपको बताऊं. आपने केमिकल काइनेटिक्स में जब कोलिजन थ्योरी पढ़ा, आरएनएस थ्योरी को जब आपने पढ़ा था, so at that time what we discussed, ठीक है ना? So what we can say that when we discussed about the catalyst theory, so then what we discussed that, तो आपने क्या पढ़ा था कि कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट से केमिकल काइनेटिक्स में आरएनएस थ्योरी में क्या था कि पहले रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है.
याद आया? बिल्कुल वही समझ लो यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल your reactant molecule combined with the catalyst form an intermediate, पहले intermediate बना, and then in the step number 2 what will happen? Step 2 में क्या हुआ? ये जो intermediate है ये बाद में break हो गया, जिससे product बन गया और X बन के बाहर निकल गया. So this is the intermediate compound theory. कि according to this theory, first of all your catalyst combined with the reactant form an intermediate. आपको पता है कोई भी ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, प्लीज टेक्स्ट मी वन आंसर, all the activated complex are the stable or the unstable compounds. Anybody can text? All the activated complex or all the product which form in a transition states, they are the stable or the unstable? Yes, exactly, very good. बहुत बढ़िया साहब. तो वर्मा जी, तरुण ब्रदर्स एंड शर्मा साहब ने बिल्कुल सही आंसर लिखा, बहुत सही. अनस्टेबल, गुड फॉर वर्मा जी. ठीक, तो ये साथ कैसे हो गया अनस्टेबल? अनस्टेबल होंगे तो ये टूट जाएगा. जब ये टूटेंगे तो फिर प्रोडक्ट अलग बन जाएगा और ये एक्स बन के बाहर निकल जाएगा. तभी हम बोलते हैं कि साहब ये हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन. एक्स था तो एक्स बाहर. ठीक है ना? सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड. बट अभी तो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस, और अगर सरफेस पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन थ्योरी है. ठीक, तो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? पहले चैप्टर की शुरुआत में आपने पढ़ा कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाता है. एक बार फिट फटाक से अपने मोबाइल की स्क्रीन का कीबोर्ड ऑन करो, या लैपटॉप पे पढ़ो तो लैपटॉप पढ़ो, और अगर डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप करो. जल्दी से लिख दो कि अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन what is the name of the surface and the molecule which absorb? Can you text me? Absorption के हिसाब से सरफेस को क्या बोलते हैं और जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Can you text me? Yes, very good. शाबाश, बहुत बढ़िया. So Aman and Priyanshu again came with a very good answer. शाबाश, बहुत बढ़िया. अमन, प्रियांशु, वेदांत, प्रज्वल, साक्षी, अनिश, सारे जबरदस्त बच्चे हैं. तो अच्छा, इसी बीच में आपने साहब सरफेस को बचा एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें एब्जॉर्बेट बोलते हैं. ठीक है अनिश साहब? ठीक है. सो द सरफेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्बेंट एंड द पार्टिकल्स आर कॉल्ड एब्जॉर्बेट. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है. तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ कि अगर कैटलिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये अगर कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है ना? अगर ये सरफेस है तो सरफेस कौन है? कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट. अब यहां पे कोई एक रिएक्टेंट आएगा, ठीक है ना? व्हाट वी कैन से दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल कम. तो रिएक्टेंट और सरफेस आएगा. ठीक, तो आई होप अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि जो पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और सरफेस को क्या बोलते हैं. तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगा कि रिएक्टेंट हमारे क्या हो गए? एब्जॉर्बेट, और कैटलिस्ट क्या हो गए? एब्जॉर्बेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन थ्योरी. ठीक है ना? तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से ऐसे कैटलिस्ट आया कि द कैटलिस्ट आर द एब्जॉर्बेंट व्हिच प्रोवाइड द सरफेस फॉर द रिएक्टेंट व्हिच आर द एब्जॉर्बेट एंड दे एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस. ठीक, चलो फिर से अपने अपने कीबोर्ड पे फोकस करो और जल्दी से आंसर लिखो. द रिमूवल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज व्हिच फिनोमेना? उठा लो मोबाइल, खोलो कीबोर्ड और लिखो आंसर फटाफट. यस, वेरी गुड. सो वेदांत एंड अमन अगेन गिव द राइट आंसर. इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. उसे डिसॉर्प्शन बोलते हैं. वेरी गुड प्रियांशु, शाबाश. सो प्रियांशु will also give the right answer. Sakshi also, Rishi also, very good. So it is called a desorption. So desorption बोलते हैं removal of the particle from the surface. आपको पता है कब तक सरफेस भरेगी? किसी के घर में गए हो, उसका एक कमरा है, तो कितने लोग आओगे? 5, 10, 15, 20, और कब तक बैठोगे? एक टाइम के बाद तो फिर जाओगे ना. तो जब जाओगे तो कमरा खाली होता जाएगा. तो coming of the particle on the surface is the adsorption. Removal of the particle from the surface is called the desorption. जल्दी से बताओ. फिर से कीबोर्ड पे फोकस करो, है ना? कपड़ा है ना? कपड़ा दिख रहा है?
इस कपड़े से मैंने ये बिगाड़ दिया, ये हटा दिया। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट द प्रोसेस आई डिड, अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल। ये मैंने रवि एक क्लॉथ लिया और मैंने इसको रब कर दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, डिसॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये यार मुझे लगता है वेदांत और अमन के अगल बगल बैठ गए हो क्या यार, बिल्कुल आगे पीछे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। या तो कुछ सेटिंग करती लग रहा है ना, गुड। हाँ ये देखो प्रियांशु थर्ड नंबर पे आ रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, यही सीक्वेंस आ रहा है, वेदांत, अमन, प्रियांशु, और उसके बाद आएंगे जहां तक ऋषि या प्रज्वल, फिर आएंगे साक्षी और फिर आ जाएंगे अमरीश, यही सीक्वेंस चल रहा है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। So now this is called the adsorption theory. ये adsorption theory है कि जिसके हिसाब से first of all the particle will adsorbed on the surface. Surface is the reactant catalyst. Then reaction will take place. After when the reaction will be completed, the reactant molecule will be converted into the product. Desorption हो जाता है। ये सब हमारा पूरा concept हुआ। And then the last modern adsorption theory. And the modern adsorption theory is the combination of both. ये दोनों पर बेस्ड है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी पर भी है और ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी पर भी बेस्ड है। तो दोनों को मिला करके पॉइंट बनाए गए और क्या हुए ध्यान से समझना है ना, ध्यान से आप समझना, क्योंकि केवल 5 पॉइंट हैं, केवल 5 पॉइंट हैं जिनको समझाया गया मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि साहब जब कैटलिस्ट को तो समझा दिया अच्छे से एब्जॉर्प्शन थ्योरी में, तो आखिर मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, और उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी की जरूरत हमें पड़ी। दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट नो दैट इफ यू आर डीलिंग विद द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, अगर हम मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, so this modern adsorption theory is the combination, ये combination है किसका, ये combination है intermediate compound theory plus intermediate compound theory plus adsorption theory, इन दोनों को मिला करके सामने बनाया है। सवाल खड़ा होता है बड़ा मजेदार है ना, हो जाए मजेदार, बहुत दिन से नहीं हो, आई होप शायद आपको मेरी याद आई होगी, मुझे तो आई, क्योंकि आपका जो ये बैच है मेटल साइंस का, इट्स वेरी मच क्लोज टू मी, है ना। तो क्या हुआ कि आपसे मैं थोड़ा सा मजाक में भी ज्यादा बात करता हूँ, बिकॉज यू आर वेरी मच नियर टू मी एज आई एज्यूम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि एक मजेदार सा किस्सा हो जाए, मैंने आपसे बोला कि सपोज ये जो स्टेशन है जहां पर केमिस्ट्री क्लास चल रहा है ना, इस स्टेशन पे केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो मतलब ये कौन सा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग दो सरफेस एट विच दोज स्टूडेंट्स विल कम विच विल अटेंड द केमिस्ट्री क्लास। ठीक, मैंने बोला साहब बगल वाले रूम में दूसरा स्टेशन है जहां पर सपोज क्लास 10th का एसएसटी चल रहा है या क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है। अब एक बात बताओ, दोनों सरफेस है ना, ये भी रूम एक स्टेशन है जहां पे YouTube का क्लास चल रहा है, so it will also assume as a station. Adjacent room will also be act as adjacent this station, and both the room will provide the surface for the students. But इस केमिस्ट्री के क्लास में क्लास 10th का बच्चा तो नहीं आएगा, और क्लास 10th के मैथ्स वाले स्टेशन पे 12th साइंस का बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ने नहीं जाएगा, ऐसा हम और आप मान रहे हैं ना। एब्जॉर्प्शन थ्योरी में ये पॉइंट नहीं बताया गया, यही गचका हो गया, यही खेल हो गया। ठीक, तो सीट बेल्ट को बांध लो कमर कस के, क्योंकि एक लंबी उड़ान भरने जा रहे हो और एक शानदार 6 मारने जा रहे हो। तो व्हाट इज द टॉपिक बेसिकली, एक्चुअली मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में ये बताया गया कि आखिर अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तो किस सरफेस पे होगा, किस सरफेस पे होगा। अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ना है तो उसको यहां आना होगा, मैथ्स वाले को बगल में जाना होगा, या और भी स्टेशन होंगे तो वहां जैसा जिसका भी हो।
इसका मतलब हर एक सरफेस पे हर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उल्टी अगर बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल नॉट एब्जॉर्ब फॉर ऑल द सरफेसेस, नॉट लाइक दैट। हाइड्रोजनेशन अगर आप कराते हो तो आप कहते हो साहब कि निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, इनका सरफेस आप लेते हो, आप क्यों नहीं ले लेते हैं सरफेस आयरन का? यू शुड टेक द सरफेस ऑफ द आयरन। लोहा भी तो है, वो तो सॉलिड सरफेस बनाएगा, वहां पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में बस एक यही नया पॉइंट आया कि ओनली ऑन दोज सरफेसेस reactant molecule will absorb and perform the chemical reaction at which the free valencies are there based on the nature of the reactant and the catalyst। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये पांचवा पॉइंट एक नया जुड़ गया। तो अगर हम पूरी बात करें तो टोटल 5 पॉइंट्स आ गए इन द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, बहुत घरेलू एग्जांपल से अगर बात करूं तो ज्यादा समझ में आता है। देसी, शुद्ध देसी, स्वदेशी बन के अगर बात करते हैं तो चीज एकदम सीमेंटेड हो जाती है, अंबुजा सीमेंट की तरीके। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, कैसे कि सबसे पहले अगर गेहूं किसी के घर में धुले तो गेहूं सुखाने की बारी आएगी छत पे, तो सबसे पहले क्या किया? डिफ्यूजन, डिस्पर्जन ऑफ द पार्टिकल, डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल। पहले पार्टिकल्स को फैला दिया। कहां फैला दिया? डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द कैटालिटिक सरफेस। छत पे गए या जहां भी जगह थी, फैला दिया, डिफ्यूज कर दिया पार्टिकल। सो डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द कैटालिटिक सरफेस। अब जैसे ही सरफेस का नाम आया, चलो थोड़ी आप भी मेरे साथ मदद करते जाओ, जैसे ही सरफेस का नाम आया वहां कौन सा प्रोसेस होगा? Whenever the surface will come, then which process starts? Can you text me? जैसे ही सरफेस का नाम है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार साक्षी अग्रवाल पहले आ गए, अमन साहब सेकंड नंबर पे हैं, ऋषि थर्ड पे, प्रियांशु फोर्थ, विराम। अच्छा, कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो गए, बट कोई नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स रोट द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक, तो जैसे ही डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द कैटालिटिक सरफेस हुआ तो कौन सा प्रोसेस हुआ? एड्सॉर्प्शन। अब जैसे ही एड्सॉर्प्शन होगा तो कैटलिस्ट, अब फिर से एक लाइन लिखो, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द कैटलिस्ट रिएक्टेंट, क्योंकि अथवा केमिस्ट्री के हिसाब से सोचते हैं, बिटवीन कैटालिटिक सरफेस जो एक केमिकल है एंड द रिएक्टेंट वो भी एक केमिकल है, दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा? कैन यू टेक्स्ट मी? बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द कैटलिस्ट मॉलिक्यूल, व्हिच व्हाट विल स्टार्ट, व्हाट विल हैपन? उन दोनों, यस, वेरी गुड अमन, शाबाश। कोलिजन होगा जिसके चलते केमिकल रिएक्शन, यस, वेरी गुड, शाबाश। कोलिजन के चलते एक रिएक्शन होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। तो देखो 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या हो गया? डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। दूसरा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। थर्ड क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट। और अगर दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये आंसर मजेदार होगा, सोच समझ के बताना। एंड आई वांट एवरीबॉडी शुड प्लीज टेक्स्ट मी। Whenever the chemical reaction take place between the reactant and the catalyst molecule, then what you will get, what will form? क्या बनेगा? Yes, very good अमन, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आ गया सीक्वेंस। अमन एंड वेदांत, प्रियांशु, बहुत बढ़िया, लाजवाब, 1 नंबर आंसर लिखा गया। वेरी गुड साक्षी, आनिश ऑल्सो, बहुत बढ़िया। ऋषि साहब ने बिल्कुल सही लिखा। ठीक, इंटरमीडिएट विल फॉर्म, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट बनेगा, अब इंटरमीडिएट क्या होगा? तो मतलब देखो कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। कैटालिटिक सरफेस पे डिफ्यूजन हुआ, फिर पार्टिकल्स आपस में मतलब क्या करने लगे? एब्जॉर्ब हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन से क्या हो गया? इंटरमीडिएट बन गया। When the reaction gets over, then what process will come? अब बताओ, इंटरमीडिएट तो बन गया, इंटरमीडिएट बाद फिर कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? अब क्या होगा? यस, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया लिखा। तो साक्षी, प्रियांशु, अमन अगेन केम द राइट आंसर, वेरी गुड। रुद्राक्ष साहब का आंसर काफी देर के बाद आया है आज। ऋषि ने बिल्कुल सही लिखा और आमिर साहब ने जो
हमेशा की तरह फिर से ठीक लिखा, वेरी गुड। तो फिर से क्या हुआ, डिसऑप्शन हो गया, डिसऑप्शन हो गया। और पांचवा पॉइंट एक नया आ गया कि the adsorption will take place only on those surfaces at which free valencies are there based on the nature of the catalyst and the reactant, and there the chemical reaction will take place. ये साथ केवल 5 पॉइंट थे जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी को क्लियर करते हैं। So is it okay to everybody? Is it okay? Is the modern adsorption theory okay to everybody? Please text me. ओके, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है साहब। तो ये थ्योरी ऑफ द कैटलिस्ट है, ये थ्योरी ऑफ द कैटलिस्ट है जिसके प्रिंसिपल पे कैटलिस्ट हमारे वर्क करते हैं। अब बचा है केवल थोड़ा सा पार्ट, तो कल मैं आपको पढ़ा दूंगा दिस सेलेक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, देन एंजाइम कैटलिस्ट एंड 2-3 main applications of that, and the catalyst part will be over. So tomorrow definitely your catalyst part will be over. I'm not sure that tomorrow your colloids part will start or not, but day after tomorrow it will definitely start, and by end of this week we will finish this surface chemistry chapter. So thank you so much dear, goodbye, take care, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोविड-19 जैसी एक बीमारी से बचते रहिए। So stay at home, stay safe, stay healthy. Thank you so much, goodbye.